Good morning, class 11. We're in the last exercise of chapter 5, and that is complex numbers. And that is the last exercise is cube root of unity. Okay. I think many of you guys would know what is unity, but today we are going to talk about what is unity. Unity is basically 1. Okay. Unity is 1. One number. And cube root of unity, I can either write it like this. Okay. Either I can write it like this. Both are the same thing. Let's say that the cube root of unity is x. The answer for cube root of unity is x. Okay, x है. So जब आपको पता है जब यहाँ से cube root उधर जाता है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, cube हो जाता है. Right? So this cube root goes on that side and becomes cube. This both are the same thing. Either I can write cube root like this, or either I can write cube root like this. Now you guys know very well that x cube equals to 1/3. ठीक है, I mean ये cube इधर से जाके इधर से जाएगा और cube बन जाएगा. Now x cube minus 1 equals to what is left on that side? There's nothing left on that side. So I have 0 on that side. I hope you are able to see this. Now when I have 0 on this side and x cube minus 1, I can also write it like this: 1 cube minus, x cube minus 1 cube equals to 0. And there is a formula for this. I can write formula for a cube minus b cube का formula क्या होता है? Okay, you know that I got two factors. मैंने इसको factorize कर दिया formula के हिसाब से, because a cube और b cube का formula होता है a minus b, a square plus b square plus ab. Okay, now what I'll do, I'll take what are the two roots that are coming for me or two solution. So first if I take this over here, नीचे जाके 0 बन जाएगा, तो मेरा पहला आंसर क्या आएगा, x minus 1 equals to 0. ठीक है, दूसरा वाला क्या आएगा, x square plus 1 plus x equals to 0. ठीक है, now what I'll do, you can see over here, तो x equals to आपके पास क्या आ जाएगा 1. सबसे पहला आंसर आपका क्या आ गया, x equals to 1. Keep this in your mind and keep this in your hand. Keep this everywhere. That पहला आंसर या पहला आपका आंसर क्या आ गया, x कितना हो सकता है, 1 हो सकता है. दूसरा क्या हो सकता है, प्लीज have a look. x square, this is, I can also compare this by ax square plus bx plus c equals to 0. And you know how to find the value of x. I hope everyone knows. So to find the value of x, that is minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. This is the formula. Now I'm going to figure out what is a, what is b, what is c. So this is a for me. X square का coefficient is a. Okay. What is b? bx का coefficient 1. So minus 1. b क्या है? 1 है. Plus minus square root b का square 1 का square 1 आएगा 4 into AC. So कितना हो जाएगा, a into c, that is 1 into c is also 1 upon 2a, that is 2. आप सबको पता है q2 2 into 1, a क्या है, 1 है, a 1 है. Okay, so what will I be getting, x equals to minus 1. Okay, if I solve this, what I'll be getting, plus minus 3 upon 2. This is the answer that I am getting right now. बट अभी जो हम करके आए, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीख के आए. आपको भी पता है, हमें ये पता है, अभी जो हम सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीख रहे हैं. और जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नंबर होता है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है. दैट्स नॉट अ रियल नंबर, दैट्स अ इमेजिनरी नंबर. जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस होता है. सो इफ यू गाइस हैव अ लुक ओवर हियर, ये माइनस है. सो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस I iota, that is 3 root 3 upon 2. I hope every one of you understood कि मैंने iota क्यों लिखा, माइनस को हटाने के लिए मैंने iota लिख दिया. अब मेरे पास दो आंसर हो सकते हैं, एक में प्लस हो सकता है और दूसरे वाले में क्या हो सकता है, -1 माइनस iota root 3 over 2. ठीक है, ध्यान से देखना हम करना क्या चाह रहे हैं. मेरे पे 3 आंसर आ गए, 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर. ठीक है, मैं क्यों करना चाह रहा हूं ऐसा, मैं क्या कर रहा हूं, फिर से देख लो.
हम क्या टॉपिक कर रहे हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी का क्यूब रूट क्या हो सकता है, मतलब 1 का क्यूब रूट क्या हो सकता है, तो हम वो फिगर आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्यों करना चाह रहे हैं? बिकॉज वो रिलेटेड है कॉम्प्लेक्स नंबर से। आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं और हम ये चैप्टर ही कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हमने स्क्वायर रूट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व था। ठीक है, हम ये करते क्यों है, मेन चीज करते क्यों? हम जब बचपन में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, तो नंबर सिस्टम में क्या आता था? रियल नंबर्स, रियल नंबर्स आते थे। रियल नंबर्स के नीचे आते थे होल नंबर, natural numbers, integers, and this all things used to come. But right now, when we entered class 11, the real number system में एक और कहानी बन गई हमारी, और जो आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमारे कुछ आंसर तो इसमें आ गए थे। 10 तक जो भी हमने किया था, हमें पता था कैसे क्या आंसर आएगा हमारा, और कुछ आंसर हम क्लास 10th में या 9th में ऐसे ही आंसर छोड़ देते थे। ठीक है, कि इसका आंसर सॉल्व नहीं होगा तो हम यही आंसर छोड़ देते थे, बाकी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो x equals to 1 we would have left our answer. Okay, but the problem is, or we would have left our answer with here बिना आयोटा के। पर जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कि जब रूट -1 होता है तब उसकी जगह आयोटा भी लगा सकते हैं, जो कि इमेजिनरी नंबर है, तो हम उसके फॉर्म में आंसर निकाल के लाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। ओके, सो हाउ मेनी आंसर्स डू आई हैव? या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना होते हैं? आई हैव 3 आंसर्स। वन इज x इक्वल 1 भी हो सकता है, दूसरा x इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा √3/2 भी हो सकता है, एंड तीसरा -1 माइनस आयोटा √3/2। So these are the 3 roots that I have, cube roots that I have of 1. Okay, so we have some properties that we are going to learn about cube root of unity. There are some properties that we are going to discuss about it. But before going to the properties, okay, there are 5 properties. 1, 2, 3, 4, 5. We'll work on all 5 of them, and I'm gonna help you guys and prove you guys what are the properties based on. Before going to the properties, let us assume one thing, that I have, okay, this is not a part of property that I am doing right now. Okay, so one of them, my square root is 1, the other one is -1 plus iota √3/2, and the other one is -1 minus iota √3/2. So how many properties? How many roots do I have? I have 3 roots. Okay, that I have already proved. You guys can go back in the video if you still have confusion, and pause the video, go back, understand that again and again. Or you guys can also open up a book and understand through your books. You'll be able to understand. It's not very tough. Okay. Now coming back to this, what I need to understand in this is that I have 3 roots. Okay, so I am giving them a name. Okay, I am giving them a name, but after solving this, I'll give it a name. Okay, so each non-real cube root of unity is the square root of other. What are the non-real cube roots? ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है। कितने क्यूब रूट है? बट नॉन रियल वाले कौन से? ये है नॉन रियल वाला, एक तो ये है और एक ये नॉन रियल वाला। क्यों है ये नॉन रियल वाला? Because it has a complex number. So that's why I'll say it is a non-real cube root. Okay. So क्या लिखा है पहले वाले में? Each non-real cube root of unity is the square of other. Okay. So I'll assume कि इसको हम ओमेगा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ओमेगा। Okay. Because सब जगह यही इस्तेमाल किया इस एक्सरसाइज में। जैसे हम x लेते हैं, y लेते हैं, z लेते हैं, ओके, ऐसे लेते हैं, तो मैं इसको ओमेगा लेता हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं ये वैल्यू नहीं डाल सकता, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर है, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मेरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक ये है, तो मैं हर जगह ये वैल्यू नहीं डाल सकता, तो मैं उसकी जगह ये यूज करूँगा। ओके, ओमेगा। अगर ये 1 है, ये तो सिंपल है, ये ओमेगा है, तो ये क्या होगा देखते हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस ओमेगा पार्ट। मैं ओमेगा का स्क्वायर कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? स्क्वायर कर रहा हूं, इसको स्क्वायरिंग कर रहा हूं। ठीक है, अब जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, मतलब ओमेगा का स्क्वायर कर रहा हूं, तब क्या आंसर आएगा मेरा? देखना,
ओमेगा का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा आंसर क्या आएगा देखना, -1 प्लस आयोटा रूट 3 का इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर अलग से हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर एंड 3 माइनस, बिकॉज यहाँ माइनस आ रहा है, 2 आयोटा रूट 3, ओके, अपॉन 4, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, क्या आएगा मेरा आंसर, मेरा आंसर आएगा ये देखो, आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाता है, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, राइट। तो मेरे पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको ही पता है, मुझे ही पता है, ये -2 और यहाँ पे -2 रूट 3, ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, मैं 2 बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, मैं 2 बाहर निकाल दूंगा, कितना हो जाएगा 2 -1 माइनस आयोटा रूट 3 4 और 2 और 2 कैंसिल, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या था मेरे पास, -1 प्लस आयोटा रूट 3, ये था मेरे पास एक रूट था, ठीक है। मेरे पे 3 रूट होते हैं, 1 एक होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, दूसरा होता है -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो मेरे पास ये आ रहा है, आप देखो, आप बुक में भी देखना, आपके पास अगर जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर ये 1 है, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, इसका स्क्वायर करना है बस, ठीक है, ओके। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मेरे से तीन रूट आएंगे, एक 1 है, एक को मैं ओमेगा ले रहा हूँ, तो दूसरा मेरा कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं एक को ओमेगा लूंगा तो दूसरा कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओके। सो मैं बेसिकली, अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में बताऊं, अगर मैं एक 1 है और एक 2 है तो दूसरा क्या आएगा 4, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर। तो अगर मैंने इसको x लिया, जैसे एक 1 है एक x है, तो दूसरा क्या आएगा x स्क्वायर, बिकॉज मुझे एक ही क्वांटिटी में चाहिए या एक ही वेरिएबल में चाहिए। तो अगर ये x है तो ये x स्क्वायर लिखूंगा, मैं 4 नहीं लिखूंगा। तो अगर ये 1 है, दूसरा वाला ओमेगा लिया मैंने, लेट दिस बी ओमेगा, सो तीसरा वाला क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। सो आई हैव 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वन इज 1, द अदर वन इज ओमेगा, द थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा की आपकी वैल्यू पता है आपको, ओके। ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। जब भी वैल्यू पुट करने बोलेंगे हम पुट करेंगे, बट वील आल्सो डू सम क्वेश्चंस ऑन दैट, ओके। सो मेरे पे 3 रूट्स आ गए, एक 1 है, ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट में चलते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ईच नॉन रियल क्यूब रूट्स, अगेन दिस आर द नॉन रियल क्यूब रूट्स, ईच नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द कॉन्जुगेट ऑफ अदर। नॉन रियल, तो मैं वो क्या बोलूं, उसका कॉन्जुगेट है, तो मैं बोल रहा हूं जब ओमेगा का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। आपको बताता हूं मैं कैसे, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है, और इधर है 2, ठीक है। और दूसरी तरफ मेरे पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, -1 माइनस आयोटा रूट 3 ओवर 2। आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक ओमेगा की है, मैंने अभी कॉन्जुगेट नहीं किया, ठीक है। एक ओमेगा की है, अभी इक्वल नहीं लिख रहा हूं, ओके। और एक ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू ये है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है। अब मैं इसका कॉन्जुगेट कर देता हूँ। कॉन्जुगेट आपको सबको पता है, गो बैक इन द एक्सरसाइज एंड सी कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्जुगेट अगर आप देखोगे क्या होगा, जहां पर भी प्लस है बीच वाले में साइन ऑपोजिट हो जाता है।
तो जब मैं इसका ओमेगा का कॉन्जुगेट करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी इसकी -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। बस मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्जुगेट में जो मिडिल टर्म का जो साइन होता है चेंज हो जाता है, तो अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आप जब ओमेगा का कॉन्जुगेट करोगे तो किसके इक्वल आएगा, जब ओमेगा का कॉन्जुगेट करोगे तो किसके इक्वल आएगा, ओमेगा स्क्वायर के। और जब ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ओमेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि साइन चेंज होता है। बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइस टू गो थ्रू द बुक्स, ओके, जस्ट गो विद अलॉन्ग, पॉज द वीडियो, सी कि क्या बता रहे हैं सर, you'll understand, it's not that hard। ठीक है, let's come to this, sum of the unity or the sum of the cube root of unity is 0। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी हम पे क्यूब रूट्स है, जो रूट्स हैं हम पे क्यूब रूट्स, उनको जब सम करूंगा तो 0 आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। अब 1 तो 1 आएगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूंगा, -1 प्लस आयोटा √3/2 प्लस -1 माइनस आयोटा √3/2। सब कैल्शियम निकाल लूंगा मैं, इसका भी एलसीएम इसका भी एलसीएम, पर देखते हैं इन दोनों का एलसीएम तो सेम है, तो कुछ हो सकता है इधर माइनस है इधर माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, ये दोनों का साइन ऑपोजिट है, ठीक है, दोनों के नीचे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा 1, फिर -1 और -1 कितना होता है -2/2, तो ये कैंसिल होकर कितना बचेगा 1, तो 1 - 1 कितना होता है 0। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जो भी मेरे पे 3 क्यूब रूट आए थे, ओके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो भी आए थे, जब मैं उनका सम करूंगा तो मेरे पे कितना आएगा 0 आंसर आएगा सम करने पे। वैसे प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, मतलब जब यूनिटी को जब क्यूब रूट यूनिटी के क्यूब रूट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस आयोटा √3/2 इंटू -1 माइनस आयोटा √3/2। जब हम इसके यूनिटी को क्यूब रूट्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा देखना, ठीक है। तो ये 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई होता है 1 मिलता, नीचे क्या आ जाएगा 4 आपका आ जाएगा, ठीक है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -1 × -1 1 आ जाएगा आपके पास, -1 × 10 तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस आयोटा √3, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा √3 आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर और 3, क्योंकि √3 और 3 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 और ये कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस मेरे पे क्या बचा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है -1, और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा 1/3 तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/4। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जब आप तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर कितना होता है ओमेगा क्यूब, और 1 तो 1 ही रहेगा और उस तरफ 1 है, 1 को किसी से ही मल्टीप्लाई करो वही आता है, मुझको मुझसे मल्टीप्लाई करो मैं ही आऊँगा, ठीक है। तो इससे मुझे ये मिल सकता है ऐसा, इससे मुझे ये मिल सकता है, और लास्ट वाला इज रिलेटेड टू दिस। वो क्या बोलना चाह रहा है कि ईच नॉन रियल क्यूब रूट इज द यूनिटी इन द रेसिप्रोकल टू ऑफ अदर। मतलब वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसको लूं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को नॉन रियल इक्वल्स टू कितनी वैल्यू है मेरी 1, इसकी कितनी वैल्यू 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो जब मैं इसको ओमेगा स्क्वायर को ऐसे रखता हूँ, उस तरफ ओमेगा ले जाता हूँ तो रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल ये है और ओमेगा का सिंपल रेसिप्रोकल ये है। तो क्या बोलना चाह रहा है, फिर से पढ़ रहा हूँ, ईच नॉन रियल क्यूब रूट, दिस आर नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ओके। विल डू सम क्वेश्चंस नाउ बेस्ड ऑन
this properties, you'll understand them. Okay, let's see some examples according to the properties that we know. Just keep 2 or 3 properties in your mind, and those properties are the sum of the cube roots of unity is equals to what? 0, है ना? And इसका कितना होता है? इसका 1 होता है, ठीक है? So keep these 2 properties in your mind, okay? Let's have a look over here. 1 plus w square minus 3 omega, this is omega, sorry, this is not w, I'm sorry about that. 1 plus omega minus 3 omega square. Now you need to understand this 3 omega के हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं सीखी, पर हमने इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी सीखी जरूर है। जैसे यानी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देख लो, ठीक है? मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, ध्यान से देखना, मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ यहाँ पे, मिटा दूंगा फिर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो या फिर मैं ओमेगा स्क्वायर इधर रखूं तो ये उस तरफ चला जाएगा, ठीक है? ये उस तरफ चल जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? माइनस ओमेगा, ठीक है? So in place of this, what am I writing? In place of this, I am writing omega minus omega minus 3 omega, ठीक है? 1 plus w, सॉरी 1 plus omega, ये उस तरफ चल जाएगा तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, अगर आप देखो दोनों लाइक टर्म्स है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I'm going to do this as minus 4 omega, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? minus 4 omega square, and then I multiply this, what I will be getting, minus and minus will get multiplied, that is going to become plus 4 and 4 16 and omega cube. But I already know the value of omega cube. What is the value of omega cube? 1. So what's my answer? 16. That's my answer, right? Okay, let's move ahead. Example number 3. Ax equals to a plus b, y equals to a omega plus b omega square, z equals to a omega square plus b omega. Okay, if you are not able to see, you guys can just, I'll write it a little bit on this side. So I have to prove x, y, z equals to a cube and b cube. So I'll write the value of x, y and z. X, y and z. I'll write the values. So what is the value? Value is x is what? A plus b bracket. What is y? A omega plus b omega square bracket close. And what is the value of z? A omega square plus b omega. Okay, so if you guys have a look now, then a plus b can be written as it is, and this both brackets can be multiplied. So if I multiply this by this, what I will be getting? A by omega, so I will be getting a square omega cube. This also by this, so I will be getting what? A b omega square. This by this, a b omega 4. This by this, b square omega cube. Now I know the value of omega cube. Wherever is omega cube, I'll just put 1. So a plus b bracket close. Here omega cube, I'll put just 1, that is a cube, plus ab omega square plus ab ओमेगा 4 में ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा और ओमेगा क्यूब, तो क्यूब की जगह तो 1 आ जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? बस ओमेगा प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा क्यूब की जगह में 1 लिख सकता हूँ, एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? ओके, सो a प्लस b, देन a क्यूब प्लस ab is common in both of them if you see, so I am going to take it out, omega square प्लस ओमेगा बचा प्लस बी क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है? तो जब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है तो ये 1 उस तरफ चल जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसकी जगह, इस पूरी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? -1, तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये -1 हो जाएगा तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका होता है, अगर आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। So that's how we are going to solve this questions on. We are going to use these properties, these two properties, and play around with these two properties, and then we'll be able to solve the questions that are given already to us. Okay, try looking at and doing these examples as well, and try doing some examples on your own as well.